ये देश मेरा मैं देश का। Good morning, ladies and gentlemen. On the occasion of the passing out parade of 74 RR batch, I, Sub-Inspector Ashwini, with my co-commentator, Sub-Inspector Yashwardhini, on behalf of the Director, Sardar Vallabhbhai Patel, National Police Academy, extend a warm welcome to our honorable guests, senior officials, faculty members of the Academy, 75 RR probationers, staff members of the Academy, their families, and esteemed members of the electronic media. I am extremely honored to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion of 74th batch IPS probationers passing out parade at this elite institution. These young minds we will witness today will grow to make us proud and achieve the highest human values tomorrow. I feel proud to be part of this elite institution where the officer trainees are taught by such renowned faculty and instructors whose teachings goes beyond the class arena. Also, they are the ones to be thanked for organizing such a huge and successful event. Before the entry of parade, let us know about the evolution of Indian Police Service. Indian police officers, until the country became independent, received probationary training in their respective provincial police training colleges. Since their training was not based on any uniform pattern or system, they did not know one another, and many of them did not even have the opportunity of knowing the system of police work in other parts of the India. After independence, Sardar Vallabhbhai Patel, the first Union Home Minister, emphasized the importance of having a ring of services which would keep the country intact under a federal constitution. He said, "The Union will go. You will not have a united India if you do not have a good all India service, which has the independence to speak out its mind." Thus was born the Indian Police Service. The Constitution of Indian Police Service necessitated a common pattern of police training, with a few to imparting induction training to the new entrants who were drawn from all regions of the country and different state of society. The Central Police Training College was established in Mount Abu, Rajasthan on September 15, 1948. The ready availability of a few unused army barracks at Mount Abu was the prime consideration for the choice. But within a year, the army authorities wanted back the buildings, and thus began the nomadic existence of this prestigious institution. The idea of setting up such a training institution for IPS was Sardar's brainchild. Through this measure, he forged a new uniformity of purpose and professional competence, which provided the needed protection to the national fabric. In a message, Sardar Patel had said, "The college is the first institution of its kind in India. It has no precedents to look back upon, but has an inspiring example to set for future generations. It has to build itself and build others. It has to create among its alumni that love and reverence for their alma mater, which are at once the pride and heritage of an educational institution." The magnificent passing out parade of 74 RR batch of Indian Police Service enters onto the parade ground from the main gate of the fort wall. All are requested to put your hands together and applaud the parade as they take their place onto the parade ground. भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से सज्जित भव्य परेड किले के द्वार से मैदान में प्रवेश करती हुई
दर्शकों से अनुरोध है कि परेड के मैदान में स्थान ग्रहण करते ही जोरदार तालियां बजाकर परेड का हौसला अफजाई करें। कई सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के पश्चात 74वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी आज दीक्षांत परेड के अवसर पर मैदान में उपस्थित कड़ी खाकी वर्दी में सुसज्जित गर्व से उठे हुए मस्तक परेड मैदान में प्रवेश करते समय इनका आत्मविश्वास इन सब से अभिव्यक्ति मिल रही है उनकी इस मानसिक और शारीरिक शक्ति की, जिसके परिवर्धन का प्रयास अकादमी प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम से कदम मिलाकर चलना मानो कह रहा हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। Ladies and gentlemen, a total of 187 probationers of 74 RR batch are participating in today's passing out parade, including 41 lady officer trainees. And this splendid parade is being commanded by Shri Shahanshah KS of Kerala Cadre. Shri Shahanshah KS was born on 9th May 1991 in the city of Thrissur, Kerala. He completed his B.Tech in Mechanical Engineering from the Government Engineering College, Thrissur. He has been a trainee with the Sports Authority of India for 8 years and has won many national and state level medals. He has previously worked with the Central Industrial Security Force as Assistant Commandant and with the Indian Railway Protection Force Service as Divisional Security Commissioner. In the IRPFS training, he was adjudged as the Best Indoor, Best Outdoor and Best Overall Probationer for the 48th batch of IRPFS officers. At present, he is deemed as the overall topper of 74 RR batch Phase 1 training.
निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक कवायद अनुदेशक श्री माली सतीश बलासो और निशान को थामे हुए हैं उप निरीक्षक कवायद अनुदेशक श्री पी नागभूषणम। निशान के रक्षक के रूप में चल रहे हैं सहायक कवायद अनुदेशक श्री मोहम्मद अनवर, श्री पी सुरेश, श्री कैलाश कलकल एवं श्री एस मधु। Ladies and gentlemen, this institution was renamed as National Police Academy in 1967 as a befitting token to the memory of Sardar Patel, the Iron Man of India, who had the foresight and dynamism to think in terms of all India level police service. The academy was named after him in 1974. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention please? Director of the Academy, Shri A.S. Rajan has arrived. Let's extend a very warm welcome to him. अकादमी के निदेशक महोदय आदरणीय श्री ए.एस. राजन हमारे बीच पधार चुके हैं और हम सभी की ओर से अकादमी परेड मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the presence of Honorable Governor of Telangana State, Srimati Tamilsai Soundarya. Thank you, ma'am, for gracing the occasion with your presence. On behalf of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, I extend a very warm welcome to our Honorable Chief Guest of the occasion, Union Home and Cooperative Minister of India, Shri Amit Shah. We are grateful to you, sir, for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's parade. फैन के संकेत है मुख्य अतिथि के आगमन का। आज के मुख्य अतिथि महोदय भारत के केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह हमारे बीच पधार चुके हैं और हम सभी की ओर से आपका अकादमी परेड मैदान में हार्दिक अभिनंदन है।
सटीक एवं सदे हुए कदमों से हौसला आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ सूर्य के तेज व जोश के साथ मंच की ओर आगे बढ़ते परेड कमांडर श्री शहनशाह केएस परेड का निरीक्षण करने का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। प्लेटून, एक माउंटेड प्लेटून और निशान परेड पर। दीक्षण परेड अब निरीक्षण के लिए हस्त रेजिमेंट। मुख्य अतिथि महोदय, भारत के केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को एक समृद्ध गुजराती परिवार में हुआ था। इनके माता पिता श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद शाह हैं। महोदय हर मान्य में उभरते नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत और अनुकरणीय निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। आपने पार्टी अध्यक्ष के दौरान एक के बाद एक राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करते हुए उल्लेखनीय रूप से और सफलतापूर्वक भाजपा के संगठनात्मक पदचिह्न का विस्तार किया। आपके कार्यकाल के दौरान भाजपा 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। आप वर्तमान में केंद्रीय गृह मामलों में और सहकारिता मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता बनने और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में 2 प्रमुख विभागों को संभालने की आपकी यह यात्रा वस्तुतः जमीनी स्तर से शुरू होती है। प्रारंभ में आप राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में शामिल हुए और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सक्रिय सदस्य बने और इसके आपने
महोदय, आपने सचिव के साथ साथ भाजपा गुजरात राज्य के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 1997 में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। आप संगठनात्मक मामलों को कुशलता से संभालने के लिए भी जाने जाते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों ने 2014 में सांसदीय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। आप एक उत्साही क्रिकेट प्रेमी, खुद एक खेल व्यक्ति और एक उत्साही पाठक हैं, जिनकी प्रमुख रुचि इतिहास और साहित्य है। दिल से धार्मिक व्यक्ति होने के नाते आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से गहरा नाता रहा है। 22 फरवरी 2016 को आप सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के ट्रस्टी बने। आपके कई सहकारी बैंकों, संघों और समाज में निदेशक अध्यक्ष के पद पर भारत के सहकारी क्षेत्रों में सेवा की। वर्तमान में आप 2019 से भारत के गृह मंत्री भारत सरकार के पद पर सुशोभित हैं और 2021 से केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री भारत सरकार का पदभार संभाले हुए हैं। चौहत्तरवें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड का निरीक्षण करके मंच की ओर लौटते हुए मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री अमित शाह, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम पुनः मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीक्षांत परेड को शपथ ग्रहण एवं मंच गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। In a few moments from now, national anthem will be played as the national flag and Academy's flag will enter onto the parade ground. All the spectators are requested to stand up at their places as a mark of respect to the national flag, and officers in uniform shall salute. सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्र ध्वज के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्र ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाए तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
राष्ट्र ध्वज टोली का कमान संभालने का अवसर मिला है निरीक्षक कवायद अनुदेशक श्री विजयदीप सिंह एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं निरीक्षक कवायद अनुदेशक श्री परमवीर। राष्ट्र ध्वज टोली के रक्षक हैं सहायक कवायद अनुदेशक जन्मय जॉयदास, शहनवाज दिनेश एस एवं वाघमारे सुरेश एन। दीक्षांत परेड का ये ऐतिहासिक दिन शपथ ग्रहण करते 74वें बैच के नव युवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसने ऐसे सुपुत्र और सुपुत्रियाएं राष्ट्र की सेवा में अर्पित किए, जिसने तन मन धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। केसरिया, सफेद और हरा इन 3 रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारी खुशहाली का, धैर्य का, शौर्य का, बलिदान का, सत्य का, शुद्धता का, विश्वास का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का। शपथ ग्रहण का ये पावन दिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों के जीवन के मील का एक पत्थर है, एक पुण्य पथ है, एक अविरल पायदान है। भारतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले कदम एक नई विहान की भांति एक नई जिम्मेदारी, नए कर्तव्यों और नए उत्तरदायित्वों का अनुभव कराएगी। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन जीवन भर याद आएंगे। आज ली हुई यह शपथ जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत बनाएंगे। शपथ ग्रहण का ये पावन और ऐतिहासिक दिन, ये शपथ है तिरंगे के प्रति, ये शपथ है राष्ट्र के प्रति, ये शपथ है समाज के प्रति, ये शपथ है संस्थान के प्रति और अपने परिजनों के सम्मान के प्रति, ये शपथ है स्वाभिमान के प्रति, ये शपथ है निष्ठा की, ईमानदारी की, न्याय की और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल पुलिस प्रशासक की। Ladies and gentlemen, the eminent opportunity of carrying the national flag is given to Inspector DI Vijaydeep Singh, and Inspector Paramveer is carrying the Academy's flag. The tricolor is the symbol of India's independence and self-reliance. The tricolor, made with the combination of saffron, white and green, is the symbol of our prosperity, patience, bravery, sacrifice, truth, purity and trust. The Indian national flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride. Over the last few decades, several people
including members of the armed forces, have unselfishly laid down their lives to keep the tricolor flying in its full glory. This auspicious day of taking oath is a milestone and a virtuous path in the life of the IPS officer trainees. These days will be remembered for a lifetime, and the oath taken today will make them aware of their responsibilities and duties. A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself, and whatever may be its symbol, its insignia, he reads essentially in the flag the government, the principles, the truth, and the history which belongs to the nation that sets it forth. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of the life, and has found solutions, I should point to India and its people. The ceremonial touching of the national flag by the IPS probationers is a precursor to the oath of allegiance to the Constitution of India that the IPS probationers will be taking today. The greatest glory in living lies not in falling, but in rising every time we fall. These young officers will dedicate themselves in the service of the nation and pledge to serve the people as per the ideals of the police service, ensuring justice for all without fear or favor. The main objective of the National Police Academy is to provide such leadership to the Indian police who can take forward the police force with courage, pride, dedication, and excellent service towards the nation. This elite institution is deemed to build a cadre of exemplary police officers who will uphold the rule of law, respect national values of secularism, democracy, equality, and service to the people, ensure the dignity and human rights of the citizens with sensitivity. Now, the Director of the Academy, Shri A.S. Rajan, will administer the oath to the IPS probationers of 74 RR batch. मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। The national flag and Academy's flag are about to leave the parade ground. All the spectators are requested to stand in their places when national anthem will be played as a mark of respect to the national flag, and officers in uniform shall salute. राष्ट्र ध्वज के परेड मैदान से वापस जाते समय राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी। दर्शकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
The march past has begun. After completion of 46 weeks of rigorous training, these 187 probationers of 74 RR batch are marching on the harmonious tune of band in strict shining khaki uniform with pride in their eyes. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। देवी और सज्जनों, ये वही पंक्तियां हैं जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए, उनमें जोश का संचार करने के लिए गाई गई थी। देश के लिए मर मिटने की कस्में खाते जोश से भरे हुए अपने स्वरों में राष्ट्र सेवा का तराना छेड़े, आंखों में अमित देश का स्वाभिमान लिए बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 74वें बैच के राष्ट्रीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 8 टुकड़ियां और एक अश्वारोही दल, जिनका आत्मविश्वास बताता है कि उन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर तेज चाल में आगे बढ़ते 74वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। A total of 8 foot platoons and 1 mounted platoon are participating in today's splendid parade, and this parade also includes foreign police officer trainees from Royal Bhutan, Maldives, Mauritius and Nepal. And this splendid parade is being commanded by Shri Shahanshah Kayas of Kerala Cadre. Platoon number 1 is being commanded by Shri Karthik Shrotriya. Platoon number 2 is commanded by Shri Mohit Rawat of Kerala Cadre. Platoon number 3 is commanded by Shri Utkarsh of Agmut Cadre. Platoon number 4 is commanded by Ms.
Diksha of Bihar cadre. The prestigious Nishan Toli is being commanded by Inspector DI Mali Satish Balaso, and Nishan is being carried by Sub-Inspector DI P. Nagabhushanam, and the Rakshak Sar Muhammad Anwar, Suresh, Madhu and Kailash Kalkal. Platoon number 5 is commanded by Shri Vaidhyavale Ankit Kumar of Gujarat cadre. Platoon number 6 is commanded by Shri Shaheen C of Rajasthan cadre. Platoon number 7 is commanded by Shri Keshwala Sanjay Sangmanbai of Gujarat cadre. Platoon number 8 is commanded by Shri Shashrik Ambartar of West Bengal cadre. And the mounted platoon is being commanded by Shri Sagar Timalsina of Nepal Police. Ladies and gentlemen, as you can see, the beautiful band contingent of instrumentalists is being commanded by Shri Rakesh Babu of the Academy. And this beautiful band contingent includes 12th Battalion TSSP Pipe Band, RPF Brass Band, CRP Brass Band and National Police Academy Brass Band. The band is bringing up every moment alive. The synchronized marching of the troops is revealing the actual meaning of uniform and uniformity. The Academy has trained these officers to be fearless in action and steadfast in deeds. Ambitious, courageous, determined, exuberant are these young officers, marching confidently to the beats of drum, marching in unison, heralding a dawn of new era. These platoons consist of smartly dressed up, energetic, young and smart members of the Indian Police Service, marching with their moral high to the tune of band in perfect alignment. 74वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी आज दीक्षांत परेड के अवसर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ इनका व्यक्तित्व कड़ी खाकी वर्दी में सुसज्जित, समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत तेज चाल में आगे बढ़ते नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, जिनका संदेश है शीश उठाए बढ़ते हैं हम अपने पथ पर शान से, उड़ने लगी गंध तहजीबी मेरे हिंदुस्तान से, गाते हैं हम मधुर रागनी अमर भरे संदेश की, सींचेंगे जीवन देकर आज़ादी अपने देश की। Dikshant parade will come in review order now and will pay compliments to the Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah. Now, Director of the Academy, Shri A.S. Rajan, is requested to present the basic course report of 74 RR batch. 2 ways of building character. 1. Cultivating strength to challenge oppression. And 2.
tolerate the resultant hardships, and give rise to courage and awareness. With these words of Sardar Vallabhbhai Patel, I greet Shri Amit Shahji, Honorable Union Home Minister, distinguished guests, esteemed former directors of the Academy, delegates from our friendly countries Nepal, Bhutan, Maldives and Mauritius, members of the NPA team, officer trainees of 75 RR, guests and family members of officer trainees of 74 RR, the parade commander Mr. Shahan Shah, and my dear officer trainees of 74 RR, officers from Nepal, Bhutan, Maldives and Mauritius on parade. We are indeed privileged and honored to have with us Shri Amit Shahji, the Honorable Union Home Minister, as the chief guest. On behalf of the Academy and on my own behalf, I extend to you, sir, a very hearty welcome. 166 officer trainees of 74 RR of Indian Police Service and 29 foreign police officers from Nepal, Bhutan, Maldives and Mauritius have completed 46 weeks of Phase 1 training. Hereafter, they would undergo 29 weeks district practical training in their cadres to relate the learnings at the Academy with the field challenges. The content and methodology of the basic training course has been upgraded to keep pace with the dynamic requirements and the perspective of meeting the day-to-day challenges of policing in the contemporary world. A smart police force, this is the ultimate goal of this Academy. The Academy worked very hard in the last 46 weeks to bring out officers who are sensitive, responsive, techno-savvy and well-trained. The Academy has tried to inculcate the highest standards of professional conduct, integrity, rectitude and sensitivity to the needs and aspirations of the people. As the officer trainees stand tall today in crisp khakis, I am confident that these alert, intelligent, trained, skilled and motivated officers will prove to be an asset to the country. During the training, inputs were provided on various law and police related subjects. A number of sensitization, orientation and competency modules were also conducted to groom the officers to enforce law impartially in tune with the demands of democratic policing, inculcating empathy and sensitivity in a pluralistic and the majority underprivileged sections of society. The classroom knowledge translates to application by visits and attachments. The trainee officers have undergone jungle survival and operation modules with Telangana Greyhounds, weapon training at the Central School of Weapons and Tactics indoor, rock climbing and other adventurous modules with ITBP, correctional administration with jail attachments and crowd management modules, and the election attachment in Gujarat to observe and learn about the election arrangements. The outdoor syllabus is equally intense and is focused on culling out physically fit and professionally skilled officers. They are imparted knowledge and skill of handling advanced weapons, inputs on field craft and tactics, equitation, swimming, yoga and motor driving. Inputs also provided on intelligence collection, combat firing, rescue, first aid and media management. The IPS officers of 74th batch of regular recruits stand today at the threshold of their challenging careers, and I express my gratitude to you, sir, for gracing this momentous occasion. I am sure that the memory of this day and your presence shall remain firmly etched in the hearts and minds of all probationers as they dedicate themselves to the service of the nation. We at the NPA
have sown the seeds of courage, high ethical values, empathy, and sensitivity. I am positive that they will flourish and bloom into officers with high standards of professionalism and sterling values. Your presence shall inspire them as they progress in their careers and mold themselves into being the sensitized or Samvedi police, and thus realize the dreams of Sardar Patel, who established this academy for the service of the nation. I once again thank you, sir, and also thank the distinguished guests, families, and the members of the media for being a part of this momentous occasion. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. Commanders! Papas! पुरस्कार विजेता लाजपत Now cups and trophies will be awarded to the probationers of 74 RR batch for their outstanding performance during their basic course training. विजेता आगे बढ़ेगा नरमाए मुड़ विजेता सज्जा विजेता मत से दस विजेता तब विजेता सज्जा विजेता सलूट अब पुरस्कार विजेता विशव. May I now request Honorable Chief Guest Shri Amit Shah to kindly present the cups and trophies to the winners. Shri Karthik Shrotriya for the Indian Police Service Martyrs Trophy for the best scored in training goes to platoon number 2, and the trophy will be received by Shri Karthik Shrotriya. Jain sir. Thank you sir. Shri Mohit Rawat for National Crime Record Bureau Trophy for Computer Studies. Shri Mohit Rawat. Shri Vaidhyavale Ankit Kumar for the BSF Trophy for Proficiency in Outdoor Subjects. Shri Vaidhyavale Ankit Kumar.
Shri Shashrak Ambardar for the Manipur Cup for Law. Shri Shashrak Ambardar. Shri Sagar Timilsina for the Tom Cup for Equitation. Shri Sagar Timilsina. Ms. Diksha for the IPS Association's Sword of Honor for the Best Outdoor Probationer of 74 RR Batch. Ms. Diksha. Thank you, sir. पुरस्कार विजेता सावधान विजेता सज्जा विजेता सैल्यूट विजेता पिक्चर मुड विजेता मत से Cups and trophy winners are marching back to their places now. पुरस्कार विजेता देखो लो मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री अमित शाह से अनुरोध है कि वे 74वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना की गवर्नर महामहिम तमिलसाई सौंदरराजन जी, एकेडमी के निर्देशक श्री एएस राजन, संयुक्त निर्देशक श्री अमित गर्ग जी और आज जिनकी दीक्षा समाप्त होकर आईपीएस की महान परंपरा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो 74 RR के सभी नौजवान साथियों, आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जब यहाँ से दीक्षांत उपरांत चले जाएंगे तब आप अमृत काल की बैच कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा आज़ादी का अमृत वर्ष है। हमारी आज़ादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है, वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। वो हमेशा के लिए आप सभी के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमने 7 दशकों में
आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहाँ आने से पहले प्रतीकात्मक रूप से शहीद आईपीएस जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद आईपीएस जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से एक पीछे मुड़कर 75 साल का विहंगावलोकन करते हैं तो वायलेंट से लोकल, वाइब्रेंट और अब ग्लोबल तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस एकेडमी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप सभी को यहाँ पर दी गई है, देश के सामने आने वाली, उभरने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हो, सुसज्ज भी हो और समर्पित भी हो। मित्रों, इस महान देश की आजादी के बाद हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के लॉन्चिंग के समय एक बात कही थी कि देश एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी इस अखिल भारतीय सेवाओं की है। आज से आप भी ये अखिल भारतीय सेवाओं की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बन रहे हो। सरदार पटेल का ये वाक्य, वो लौह पुरुष, वो मनीषी का ये वाक्य आपके जीवन का ध्रुव वाक्य बनना चाहिए कि देश को एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, सरदार पटेल ने इस कॉलेज की स्थापना के वक्त ये कहा था कि ये कॉलेज भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। पीछे मुड़कर देखने पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसे अपने साथ दूसरों का भी निर्माण करना है। इसे अपने छात्रों के बीच वो प्यार और सम्मान पैदा करना है जो एक समय में शैक्षिक संस्थान का गौरव और विरासत हुआ करता था। मुझे लगता है कि एकेडमी ने 75 साल में देश के प्रथम गृह मंत्री ने एकेडमी के सामने जो लक्ष्य रखे थे वो सभी भली भांति पूर्ण किए हैं। आज कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल
विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा। इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कारण जो नई चुनौतियां उभर कर आ रही है, टेक्नोलॉजी मिशन इसका पहले से सुसज्ज एक पुलिस फोर्स बनाकर इसकी चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार होगा। मैं एकेडमी को भी बधाई और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कैडर भाषा और कैडर के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब एक लक्ष्य रखा है देश की जनता के सामने कि 25 साल संकल्प लेकर संकल्प को सिद्ध करने के, संकल्प सिद्धि के 25 साल है, अमृत काल के 25 साल है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, हर क्षेत्र के अंदर देश विश्व में सर्वप्रथम होगा। ये आशावाद और ये लक्ष्य, इसकी परिपूर्ति हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों है। और जब आप यहां से आईपीएस बनकर जा रहे हो, तब आप सभी की इसकी विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छी कानून और व्यवस्था और अभेद आंतरिक सुरक्षा, इसके बगैर कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। विकास की नींव ही नागरिक अधिकारों की रक्षा, कमजोर से कमजोर नागरिक के अधिकार की रक्षा, उसके प्रति तंत्र की संवेदनशीलता और सभी चुनौतियों का सामना करने वाला पुलिस तंत्र ही एक विकसित राष्ट्र की नींव डाल सकता है। हमने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित राष्ट्र हो, 2025 तक $5 ट्रिलियन की अमेरिकी डॉलर वाली हम अर्थव्यवस्था बने। और ये इसलिए संभव दिखाई पड़ता है कि 2014 में हम दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज महज 8 साल के अंतराल में हम 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। और मॉर्गन स्टैनली का एक अनुमान है कि 2027 तक भारत संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सब जब यहां देश के संविधान के स्पिरिट को समझकर जा रहे हो, तब एक बात पर मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वर्षों में एक बार वोट कर शासन व्यवस्था चुनने वाला नागरिक, 5 वर्षों के लिए इलेक्टेड सरकार जो नागरिकों के चुनने से बनती है, और 30 से 35 वर्षों के लिए सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी जो देश की सेवा करती है। नागरिक को 5 साल में एक बार वोट का अधिकार है। जो लोग चुनकर आते हैं वो देश के विकास के लिए 5 साल काम करते हैं, बाद में फिर से मैंडेट लेने जाना है। मगर आप जो अखिल भारतीय सेवा और सरकारी सेवाओं में आते हैं, उनको 30-35 साल तक निर्बाध तरीके से देश की सेवा करने का अधिकार मिलता है। इससे आप लोगों को ये हमेशा संज्ञान में रहना चाहिए कि संविधान ने कितने बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर डाली है। आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महान भारत का सपना जो हमारे आजादी के संग्राम के सेनानियों ने देखा था, वो सपना सिद्ध करने का समय ये 25 साल है। और ये 25 साल आप आईपीएस ऑफिसर के नाते देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते होंगे।
मैं ये बात इसलिए आपको कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संज्ञान हमेशा आपके मन पर, आपके कर्तव्य पर और आपकी जवाबदेही पर रहना चाहिए। मित्रों, 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी है। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापस लाकर राज्य के बीच में सीमा के झगड़ों का निपटान कर और विकास की एक नई बयार पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की एक शुरुआत हुई है। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम भरा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की है। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानूनों का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना, ये वैश्विक रूप से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक है। पिछले 3 वर्षों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हमने फॉरेंसिक साइंस क्षेत्र में एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक गैप भरने का प्रयास किया है। जब आप यहां से फील्ड में जाएंगे तब आईसीजेएस के रूप में क्रिमिनल जस्टिस के मुख्य स्तंभ अर्थात ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ई प्रोसिक्यूशन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सीसीटीएन के साथ आपका जुड़ाव होगा और आपने पुलिसिंग के काम को भी आईसीजेएस के साथ जुड़ने का काम करना है। अभी एनआईए देश के सभी राज्यों में एक्सपांड कर रही है। एनआईए और एनसीबी का एक्सपांशन अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के नारकोटिक्स और टेररिज्म से जुड़े हुए अपराधों पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। टेररिज्म, नारकोटिक्स और इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे अपराधों पर हम नेशनल डेटाबेस पर भी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट डाटा नाफीस को भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना हो चुकी है और इसके साथ साथ हाउसिंग, स्वस्थ जवान को फैमिली के साथ ज़्यादा समय मिले, इसके लिए भी कई योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लेकर आई है।
मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टैटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने हैं। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस्ड और फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस बेस्ड बनाना, नारकोटिक्स और नारकोटिक्स के टेरर लिंक पर नकेल कसना, साइबर तथा फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे विषयों पर हमारा फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, जब आप यहाँ से आज दीक्षांत होकर जा रहे हैं तब मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक्सेसिबल भी होना है, अकाउंटेबल भी होना है और अप्रोचेबल भी रहना है। एक्सेसिबल होने का मतलब है ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण तीनों के बीच में समन्वय लाकर एक्सेसिबल बनने का प्रयास करना। आपको को अपने साथ नई ऊर्जा, नया विश्वास लेकर एक अकाउंटेबल पुलिसिंग की मिसाल भी कायम करनी होगी और अप्रोचेबल बनकर पुलिसिंग को सुगम्य बनाना पड़ेगा। स्थानीय भाषा का महत्व, स्थानीय भूगोल, स्थानीय इतिहास और स्थानीय संस्कृति को पढ़े बगैर हम कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। संविधान की आत्मा व्यक्ति है, संविधान की आत्मा नागरिक है, संविधान की आत्मा नागरिक के अधिकार है। इसी को लक्ष्य में रखकर संविधान की और कानून की सभी धाराओं का हमने व्याख्या करना होगा। जब व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तब कोई संविधान की धारा मायने नहीं रखती है। आपको अपने प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित कर आगे बढ़ना होगा। नीचे के लोगों का विश्वास जीतना, आम जनता का विश्वास जीतना और अपनी मानवीयता को बरकरार रखना, ये बहुत श्रम मांगने वाला काम है जो आपने करना पड़ेगा। तनाव प्रबंधन में अधिस्तन कार्य कर रहे कर्मियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अधिस्तन अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याणकारी उपायों पर फोकस बढ़ाना और उसके लिए संवेदनशील होना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके तहत आने वाले पुलिस फोर्स को पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से हमेशा सुसज्ज करना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और आपने आपके अप्रोच को वैश्विक बनाकर सभी चुनौतियों का सामना करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक बार पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन पर थ्रस्ट देना चाहूँगा, क्योंकि अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और एनफोर्समेंट, ये 3 मंत्र के आधार पर टेक्नोलॉजी मिशन आगे बढ़ने वाला है। मैं आप सभी को अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप इसका हिस्सा बने और इसको और मजबूत दें। आपने कई सारी सावधानियां भी रखनी होगी। प्रसिद्धि से दूर रहना, मैं मानता हूँ पुलिस बल के मुखिया के नाते बहुत जरूरी होता है। दबाव में ना आना, वो भी बहुत जरूरी होता है और इसके साथ साथ सबसे नीचे के तबके के व्यक्ति के अधिकार
और संवेदना को समझना वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग ऐसा मत मानकर जाइएगा कि आज से सिर्फ आप यहाँ से आईपीएस बनकर जा रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने के साथ ही 25 साल जब देश की आज़ादी का शताब्दी मनाया जाएगा, उस वक्त जो महान भारत की रचना होगी, इसका नींव डालने की जिम्मेदारी आपकी है। और पूरे कर्तव्य पथ को 75 साल से 100 साल के कर्तव्य पथ को संकल्प से सिद्धि की यात्रा का आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आइए हम सब साथ मिलकर मोदी जी ने हमारे सामने जो कल्पना रखी है, वो महान भारत की रचना में हम अपना सर्वोच्च योगदान दें और हम देश की एकता और अखंडितता के प्रति सदैव समर्पित रहे। आपकी व्यक्तिगत कैरियर के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। यहाँ से जब आप पास होकर जा रहे हैं, दीक्षांत होकर जा रहे हैं, तब आपका व्यक्तिगत जीवन और आपकी कैरियर दोनों आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। परेड को निष्क्रमण की अनुमति हेतु मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर केरल कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री शहनशाह केएस। दीक्षांत परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। निशान कोश कर आगे बढ़ेगा मध्य से दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाए तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। All the spectators are requested to stand in their places as a mark of respect to Academy's color, and officers in uniform shall salute.
The Dikshant parade of 74 RR batch has come to an end. The peeling off has started. These young officers are about to take their first step in the service of the nation. We salute you, officers. Live a life of dignity, humility, and empathy. You should be men and women who shall weather many storms and still stand tall, very tall. Marching to the tune of Auld Lang Syne in perfect coordination, with their head held high and dreams in their eyes for a prosperous nation, are these young officers of 74 RR batch. Coming in front, from left to right are Bindumani RN, Anshika Verma, Anchal Chauhan, Nitisha Sanjay Jagtap, Shabya Goyal, Arshi Adil, Yanchin Doma Bhutia, Somalin Subadarshini, Babita Rani, Kritika CM, Sheshadrini Reddy, Polomati Sharanya, प्रवेश विनीत अहलावत, मोहम्मद सलीम, नीतू, Niharika Tomar, Kiran Yadav, Ankita Surana, प्रवेश कार्की सोनाक्षी सिंह, शांतनु कुमार झा, परिचय कुमार, KM प्रियंका, अमृतपाल कौर, आकर्षी जैन, मंजीत सिंह सांकला, अमृत जैन, अदिति सिंह, नयोमी सतम, शांभवी मिश्रा, रजत कुमार पाल, अन्नपूर्णा सिंह, शहनाज इलियास, रिकी अग्रवाल, अश्वती जीजी, साहित्या वी, चिलुमुला रजनीकांत, उमेश प्रसाद गुप्ता, आकाश कुमार शुक्ला, सूरज गुंजाल भाव साहेब, आदर्शकांत शुक्ला, राजीव कुमार, चिराग जैन, केल्जन कुंशो, मनप्रीत सिंह सुदन, जिग्मे फुंशो, अतुल कुमार, ऋषिकेश देसाई, मोहम्मद अशद, उकेन शेरीन, सुदाम्बिका आर, गरिमा, सुरेश कैलाश राव शिंदे, ऋत्विक श्रीवास्तव, अंकित सोनी, केजन रिंजिन, सांगा डोरची, इब्राहिम मारूफ, फैजल रजा, पेमा लहजीन, मयूर खंडेलवाल, चौहान राहुल लक्ष्मण, राजेश कुमार मोहन, विदिता दागर, जितेंद्र कुमार मेहरा, शोएब श्रवण कुमार, पारस राणा, शेख मोहम्मद जैक जकीर, आयुष श्रीवास्तव, अभिषेक अंदसू, अंकित कुमार शांखवाड़, गीते महेश बाबा साहेब, श्रीनिवास एमपी, ऐश्वर्या सिंह, सचिन हिरेमठ, आशीष, प्रिशा हरद्वार, अनिल रामदास मस्के, अंजलि विश्वकर्मा, अरुण कुमार सिंह, विनोद पाटिल हेच, शिखर चौधरी, झा अमन कुमार, केलकर सुब्रमण्य बालचंद्र, प्रशांत किरण, शुभम अग्रवाल, आयुष गुप्ता, मनकर सुबोध रमेश, बी आदित्य, आनंद कलादगी, लोकेश यादव, पंकज कुमार मीना, पवन कुमार यादव, अमित जैन, बी चंद्रकांत रेड्डी, रविंद्र चंद, अंकित कुमार वर्मा, उदय कुमार, अनिश, कुलदीप मीना, मनोज कुमार रावत, धीरज ठाकुर, राहुल गोयल, टिकम सिंह वर्मा, विकास स्वामी, इब्राहिम मोहम्मद फुलहू, आदित्य भाटी, नीलेश श्रीकांत गैकवाड़, नरेंद्र रावत, के.एस. प्रवीण गौतम, योगेश मंठैया, विवेक बेड़ा, अभिषेक रंजन, शैलजा दास, शुभम सिंह, कमलेश मीना, अविनाश कुमार, मोहम्मद अदुहम आदम, रोहित कुमार शाह, नीर बहादुर बनिया, राकेश सिंह, रविंद्र कुमार मीना, कुंवर आकाश सिंह, विक्रम धैया, अजिंक्य अनंत विद्यागर, अंशुल जैन, शक्ति सिंह आर्या, अमरिंदर सिंह, निशांत सौरभ, अमित कुमार सिद्धि प्रसाद महतो, अपराजित लोहन, सृष्टि गुप्ता, हरि प्रसाद के, अमृतपाल सिंह, शुभम बजाज, जयंत पुरी, शिवम उपाध्याय, देवांश पांडे, व्योम बिंडल, मनीष कुमार, विनोद कुमार मीना, राहुल मिश्रा, कृष्णन नायर, गोविंद राजन, गवित गोगना, राहुल एल नायर, शिवरमन एनयू, आदित्य बंसल, सचिन यादव, मोहम्मद हासन, दीपक धनखड़, विकास वर्मा, साई दत्तात्रेय वर्मा, अनमोल मित्तल, चिकन अभिजीत, ऋषि कुमार, कुमार शिवाशीष, वैभव चौधरी, अभिजीत कुमार, नितिन यादव, भानु प्रताप सिंह, मुकुंद तिब्रिवाल, अंगद मेहता, आदित्य, अमन प्रकाश मीना, वीरप्पन एविन, रविश्वरा राकेश नरसिम्लू, कृष्ण लाल चंदानी, ईशान गुप्ता, अली वसीम, नित्य राधाकृष्णन, गौरव अग्रवाल, लक्ष्मी सौजन्या, पुष्कर वर्मा, सिबिन पी, वैभव बंगर, रमेश, उदित पुष्कर, सागर तिमिल सीना, उत्कर्ष, दीक्षा,
वैद्यवलय अंकित कुमार, शाहीन सी, कार्तिक श्रोत्रिय, मोहित रावत, केशवाला संजय सांगणबाई, शाश्रुक अंबरदार, and the parade commander Shri Shahanshah KS. आज की इस ऐतिहासिक दीक्षांत परेड का साक्षी बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दो पंक्तियों के साथ हम भारतीय पुलिस सेवा के नव युवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। सेनानी करो प्रयाण अभय, सारा आकाश तुम्हारा है, ये नक्षत्र अमन के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को उप निरीक्षक यशवर्धनी और उप निरीक्षक अश्विनी का नमस्कार। जय हिंद। Thank you all for being part of such prestigious parade. Jai Hind. All the spectators are requested to be seated and witness the harmonious band show by 12th Battalion TSSP Pipe Band, Nalgonda, Telangana State. And this pipe band is being commanded by Pipe Band Master ASI A. Gurvaiya.
ये देश मेरा मैं देश का।